Welcome to Gokul Junior College. Today we'll be seeing the governor as we have discussed yesterday in the last class. So today we'll see powers and functions of governor. So in the last class we have discussed about president. President is nothing from the union government. Now governor is functioning in where? Governor is functioning in the state government. Now governor is working for state government, but he is working under the guidance of union government. He is working under the guidance of union government. Who appoints governor is nothing but, yesterday we have discussed president. हम कल डिस्कस करे थे प्रेसिडेंट के पूरे पावर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में. अगर वो क्लास में देखना है आप लास्ट वीडियो देख लो, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाता. सो टुडे व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर. अब ये गवर्नर को किधर पोस्ट करे? गवर्नर इज पोस्टेड इन स्टेट. सो एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर. यस. So what is governor doing? He is governing the state and giving all information to union government. So who appoints governor? President will appoint the governor. Now we have to see what powers and functions governor has. Yesterday, see, in comparison to president we will speak. Here we will take president. Yesterday's class. So he has executive power. President has executive power. Yes, governor also have executive powers. Then president has legislative powers. Governor also have legislative powers. Next, he has financial powers. Governor also have financial powers. He has judicial powers. Governor also have judicial powers. Here we are seeing this 4. Here there are 4. Now when we say about diplomatic powers, governor don't have diplomatic powers. He has military powers. He don't have military powers. Now we have to see all these 4 powers. We will see these 4 powers are enough if we discuss. Here he has 7 powers. So when you see who is powerful in the government means president is powerful. President only appoints the governor. Where is governor appointed? Governor is appointed in the state government. Why? To look after the state government and report it to the central government. So always we are discussing that government is checks and balance. Government behaves as check and balance on each other. That means government is checking each and every point. Now we have to discuss the executive powers. So when we will discuss the I will rub this presidents. So why I wrote about president? Yesterday we have discussed the president's class. Even though today why we have done is because their powers are nearly the same. So just to explain the comparison we have done. But who is powerful? Ultimate president is powerful. Now we will see the executive powers. What is executive powers? What are legislative powers? What are financial powers? What are judicial powers? We have to see. When we say executive powers, we have seen ordinance. Ordinance, that is article 123.
Article in Constitution 123 we have seen Ordinance Act. That means in the absence of legislature, the executive will create the law and the law shall be accepted within 6 weeks. क्या करना है यहाँ पर, क्या है, जब लेजिस्लेचर एब्सेंट है तो एग्जीक्यूटिव रूल बनाता और वो कौन से आर्टिकल के अंडर में आता, 123 के अंडर में, और ये कितने दिनों में इसको अप्रूव करना है, 6 हफ्तों में, 6 हफ्तों में करना, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है. देन इफ यू सी, हम यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट में, जिसमें यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स नहीं है. सर यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स नहीं है सर, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी रहता ना सर. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या करता, ही विल एग्जीक्यूट, गवर्नर विल से सर state has failed to administer, so there must be constitutional democracy which has to be emergency, which has to be implemented. So what I have to do is I will go for the governor rule. If governor is also unable to rule the state, then he will tell constitutional emergency and hand over it to president. What he will do, he will hand over it to president. So president rule will be implemented in the country. So this is about him. So governor, and what governor will do, you have to know. When we say he has executive powers, that means he has power to appoint, इनको appoint करने का powers है. So whom is appointing, he is appointing the state election commission members. He is electing state election commission members, he is appointing. Then he will appoint vice chancellor of the university. Example, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर को बिठाना है, कौन बिठाता, गवर्नर, और उसका चेयरमैन कौन रहता है यूनिवर्सिटी का, गवर्नर इज द चेयरमैन, एंड ही विल बी अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर. ये यहाँ पर याद रखना है आपको. देन वी आर सेइंग लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, लेजिस्लेटिव का मतलब ही यहाँ पर क्या हो जा रहा, लॉ मेकिंग पावर. ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में गवर्नर का क्या कंट्रीब्यूशन है. एग्जाम्पल, असेंबली, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में असेंबली है. सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर बैठ रहे हैं. सो लेजिस्लेटिव पावर्स में जब देख रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस, प्रेसिडेंट के टाइम पे हम देखे थे ही कैन अपॉइंट 12 पीपल, 12 जनों को अपॉइंट कर सकता. सो सेम गवर्नर के पास भी एक एंग्लो इंडियन को लेजिस्लेचर के अंदर भेजने का पावर है. 1 एंग्लो इंडियन को किधर भेजता, लेजिस्लेचर को भेजता. लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली. Legislative Assembly. He will appoint 1 Anglo-Indian in Legislative Assembly. And यहाँ पर legislative powers के टाइम पे आप देखेंगे, आपको legislative process में, law making process में bills introduce करते असेंबली के अंदर. जब वो बिल्स इंट्रोड्यूस करते, हम जैसा प्रेसिडेंट को देखे थे पार्लियामेंट में, जैसा सेम बिल्स इंट्रोड्यूस करते, वो जाके एक्ट बनता आफ्टर अप्रूवल. Before taking the assent of president, the bill cannot be passed in the parliament. The same way, before taking the assent of governor, the bill cannot be passed into the assembly. ये एक आपको याद रखना है. गवर्नर को फर्स्ट आप देना है बिल, he will go through the bill. If अगर वो बिल किसी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, या वो बिल किसी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, या बिल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या अपना इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता, बोले तो इंटीग्रिटी मतलब अपना यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द स्टेट्स जो डिस्टर्ब करता, उसको वो होल्ड करके रख सकता. ही कैन होल्ड दैट बिल एंड ही विल इन्फॉर्म टू प्रेसिडेंट. जब उसमें थोड़ा प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद ही ये बिल को रिलीज करता.
या बिल को कैंसिल भी कर सकता। सो वो बिल को प्रेजेंट नहीं करे जैसा भी स्टॉप करने का पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। एग्जाम्पल हम बोल रहे यूनियन बजट, वो फिनेंशियल पावर्स में भी हम बात करेंगे। सो यूनियन बजट जो पार्लियामेंट में होता, स्टेट बजट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता। सो लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बजट स्टार्ट कर रहे तो डे वन गवर्नर को रहना जरूरी है। डे वन असेंबली में आके बैठता गवर्नर, ओके, असेंबली में आके गवर्नर बैठता। जैसा प्रेसिडेंट विल कम टू पार्लियामेंट, वन डे के लिए आते, वो बिल इंट्रोड्यूस करके चले जाते। सो ऑर्डिनरी बिल्स रखने का पावर किसके पास रहता? ऑर्डिनरी बिल्स के लिए पावर ऑथराइज करने का गवर्नर के पास रहता, वहां पर प्रेसिडेंट के पास रहता। देयर इज वन मोर थिंग, एग्जाम्पल स्पीकर नहीं है, ओके, वही नहीं है, वो दूसरी बात है। स्पीकर इज अनअवेलेबल एंड डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट। सो वो टाइम पे असेंबली सेशंस कैंसिल करते क्या? पूरे लोग आके रहते, सो एक्सपेंडिचर तो उसका तो हो रहा। सो कैन दे कैंसल मीन्स नो, दे विल नॉट कैंसल। सो someone will be temporarily appointed on that speaker seat. Who will appoint? Can CM appoint him? No, CM don't have that authority. So गवर्नर को ही अथॉरिटी रहता। अभी CM के कैबिनेट में मिनिस्टर्स रहते। सो CM के कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स रहते, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कौन करता? गवर्नर करता, अपॉइंट करता। सीएम को कौन अपॉइंट कराता? इलेक्शंस हो जाता, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिल जाता, गवर्नमेंट फॉर्म करता। मगर सीएम आके एक ओथ सेरेमनी में ही हैज टू प्रॉमिस, आप लोग तो फिल्म्स में भी देखे होंगे, आई गेस एवरीवन नो, देयर विल बी अ ओथ सेरेमनी एंड दैट ओथ सेरेमनी विल बी, दैट प्रोसेशन विल बी टेकन बाय गवर्नर। गवर्नर विल फर्स्ट टेल, देन सेकेंड थिंग द सेम thing will be repeated by the CM and he will take that oath and then he will become chief minister of the state. That means who will take care of that? Governor is the person who will take care. So यहाँ पर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करना किसके हाथ में है? पावर गवर्नर के हाथ में। So यहाँ पर जब आ गया फिनेंशियल पावर्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा विद द असेंट ऑफ गवर्नर, बिल रिजेक्ट हो रहा विद द असेंट ऑफ गवर्नर। एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अगर हम जैसा प्राइम मिनिस्टर की बात करे थे, एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विल बी डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जैसा प्राइम मिनिस्टर हर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, पार्लियामेंट्री फंक्शंस, हर एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट जैसा कर रहे थे, सेम वे में लेजिस्लेटिव असेंबली में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट को एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहता। सो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते? एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन द नेम ऑफ गवर्नर ओनली दे विल डू। ओके, थोड़ा यहाँ रब कर देता हूँ, थोड़े फंक्शंस उनके लिखेंगे। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, सीएम को अपॉइंटमेंट कर रहा, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को अपॉइंट कर रहा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो। देन बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा, जब तक एक्ट नहीं बनता, जब तक गवर्नर का असेंट नहीं होता, सिग्नेचर को ही हम क्या बोलते हैं? असेंट बोलते हैं हम। सो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाले कौन है? गवर्नर। एग्जाम्पल हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़े थे, ECI बोलते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, where they will conduct election, whole India they will conduct election for Lok Sabha and they will conduct the election for legislature. The legislature election क्या है? जनरल इलेक्शन ये लोग करते। सो म्यूनसिपालिटीज़ का कौन कंडक्ट करते हैं? म्यूनसिपालिटीज़ का रेस्पेक्टिव स्टेट्स में अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन करता, स्टेट इलेक्शन कमीशन करता ये सब। सो यहाँ पर ऑडिटर जनरल रहता, ऑडिटर, हम ये ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़े थे, CAG,
कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़े थे, पूरा अकाउंट्स मेंटेन करने वाला कौन है? CAG। अब ये ऑडिटर जनरल किसके रेस्पॉन्स में रहता? गवर्नर भी इसके रेस्पॉन्स में रहता। एग्जाम्पल, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटिजेंट फंड्स ऑफ इंडिया बोल के 2 अकाउंट्स के बारे में हम डिस्कस करे थे लास्ट क्लास में। सो ये क्या है? सेफ्टी के लिए फंड्स रहते। सो सेफ्टी के लिए फंड्स रहता है। एग्जाम्पल क्या हुआ? फ्लड्स आया तेलंगाना में, अगर फ्लड्स आया, when we face the dangerous consequences like COVID norms में कोविड टाइम पे प्रॉब्लम्स आए, एनी फ्लड्स और एनी ड्रॉट कंडीशन, सो व्हेन वी डोंट हैव मनी टू रन द स्टेट, वी कैन टेक फ्रॉम कंटिजेंट फंड्स ऑफ इंडिया। हु कैन टेक लोन? दैट इज गवर्नर कैन अप्रूव। अनटिल एंड अनलेस गवर्नर अप्रूव नहीं करे, ये फंड्स में से अपने को पैसे नहीं ले सकते आप। दिस इज वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी गवर्नमेंट में, एग्जाम्पल गवर्नमेंट मनमानी कर सकता ना, उस पर चेक्स एंड बैलेंस बोले हम। एग्जाम्पल, देर इज सम ऑर्गेनाइजेशन विच CM wants to give grant in aid, ग्रांट देना चाह रहे या इन एड देना चाह रहे। एड बोले तो हेल्प के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन देना चाह रहा? CM देना चाह रहा। ओके, एग्जाम्पल, CM ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता और उसको ग्रांट दे देता। दे सकता क्या ऐसा? विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नर ही कैन नॉट गिव एनी ग्रांट। कोई ग्रांट लेना है स्टेट तो भी गवर्नर अप्रूवल देना है। स्टेट किसी को ग्रांट देना है कोई ऑर्गेनाइजेशन को, जब भी गवर्नर का परमिशन लेना है। और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स करने के लिए कौन करना है? गवर्नर। जुडिशियल पावर्स की जब बात कर रहे हैं हम जुडिशियल पावर्स बोल रहे, वी हैव डन और नॉट? जुडिशियल पावर्स बोल के डिस्कस करें या नहीं करें? यस। जुडिशियल पावर्स में जब आ रहे तो अपॉइंटमेंट्स की जब बात आ रही तो इसको कौन करते? गवर्नर करता। कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स कौन कर रहे? गवर्नर। इसके बाद सिंपल हम बोल रहे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का भी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा? जुडिशरी डिपार्टमेंट में गवर्नर कर रहा। पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गवर्नर कर रहा। नाउ ये अपॉइंटमेंट्स पूरे कर दिया। ओके, अब गवर्नर एडवोकेट जनरल को निकालना चाह रहा। निकाल सकता क्या? नो। अपॉइंट कर सकता विद द इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ हाई कोर्ट जजेस से। ये लेके इनको अपॉइंट करता, मगर इनको निकालना है तो भी सेम हाई कोर्ट के जज को निकालने का क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस, वही प्रोसीजर है। सो सेम प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर के अंदर हम नहीं जाएंगे, वो बहुत डेप्थ में चले जाता, वो दूसरा टॉपिक है, उसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। सो इनको अपॉइंट कर सकता मगर इनको निकाल नहीं सकता। गवर्नर डोंट हैव पावर टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोजीशन। ये मिनिस्टर्स को शफल कर सकता, वो भी गवर्नर के मर्जी से क्या? नहीं, CM के एडवाइस से मिनिस्टर्स को शफल करता, वो कर सकते। एंड जुडिशियल पावर्स में एग्जाम्पल, आप प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स देखे थे, किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिए। व्हाट वी से कैपिटल पनिशमेंट? बोलते मैक्सिमम पनिशमेंट। एग्जाम्पल, डेथ पेनाल्टी दिए समझो, डेथ पेनाल्टी दिए किसी को, इसका सजा कम कर सकता, इसका सजा माफ कर सकते क्या? ऐसा पावर्स है क्या? बोलते हो यस, ही हैज पावर टू रिप्राइव, ही हैज पावर टू सेट हिम फ्री ऑल्सो। व्हाई? ही हैज सर्टन एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो किसी के डेथ पेनाल्टी को भी रोक सकता, किसी को सजा भी कम कर सकता, ही कैन मेक इट लेस। अगर 14 ईयर्स सज़ा है, उसको 7 साल का सज़ा भी कर सकते। सो ये इनको जुडिशियल पावर्स भी इनके हाथ में है। सो ये कर सकते। प्रेसिडेंट भी कर सकता, किसी को हैंगिंग पनिशमेंट है उसको कम कर सकता, किसी को पनिशमेंट ज़्यादा है उसको कम कर सकता। और ये अंडर ट्रायल्स जिसके रहते उन पे कंसिडरेशन कर सकता, यस कर सकता, मगर
आज तक कभी हुआ क्या किसी को हैंगिंग पनिशमेंट दिए और किसी को छोड़ दिए फ्री, ऐसा कोई परमिशन दिए कोई प्रेसिडेंट बोले तो आज का तारीख तक कभी भी नहीं हुआ। ये आपको याद रहना है। 15 ईयर्स के बाद धनंजय चटर्जी से फिर हैंगिंग का पनिशमेंट शुरू हुआ। अब्दुल कलाम सर जब प्रेसिडेंट थे तो वो टाइम पे डेथ पेनल्टी फिर से हैंगिंग पनिशमेंट स्टार्ट करे थे। बट आफ्टर हिम प्रणब मुखर्जी सर आए, उनके पास भी कई ऐसे एप्लीकेशंस आए जिसको बोलते हम मर्सी पिटिशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मर्सी पिटिशन बोलते हैं इसको। बोले तो क्या पूछ रहे हैं लोग? मर्सी पूछ रहे। दे आर आस्किंग फॉर एक्सक्यूज, सो इफ दे वांट दे कैन गिव मर्सी पिटिशन। बट टिल नाउ डिड इट हैपन इन इंडिया? मीन्स नो, नहीं हुआ, अभी तक नहीं दिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन, लेट इट बी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे विल नॉट टेक वेरी इजीली। जब भी ये लोग डिसीजंस दे रहे हैं तो वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन रहता है इनका, और इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता, इसलिए उतना आसानी से किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं देते अपने कंट्री में। इवन एग्जाम्पल लिए तो अजमल कसब जो टेररिस्ट आया, ही वॉज प्रूव्ड एज टेररिस्ट। ये केस में भी आप देखिए इंडिया में ट्रायल सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल है। वो इंडियन हो या एलियन हो, सबको ट्रायल होने के बाद ही सज़ा मिलता। सो अपना क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए पनिशमेंट देना भी उतना आसान नहीं है। बाय दिस अपना गवर्नर का टॉपिक हो गया। टुमारो विल मीट स्टूडेंट्स, कल दूसरे टॉपिक से मिलेंगे। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।